دیکھیے آپ کا نفس آپ کو ایک حکم دیتا ہے، اس کے اندر سے ایک طلب ابھرتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک سے خواہش کلامی کا ابھرتی شرف ہے۔ حاصل کرتے تھے، آپ کو معلوم ہے ہو کہ رہی یہ ہے خواہش حرام، لیکن اللہ نظر نہیں آ رہا۔ اب آپ نے اللہ کے حکم کو پس پش ڈالا اور اپنے نفس کی خواہش پوری کی، سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، اور کر لی یہ جو صورتحال تھی۔ ایک حکم آپ کے نفس کا، آواز دیکھیے سن رہے آپ کا ہیں، نفس آپ کو کلام ایک سن حکم رہے ہیں، دیتا سامنے ہے، اس نہیں کے آ اندر رہا، سے ایک طلب تو ابھرتی آپ ہے، کے دل میں ایک خواہش ابھرتی ہے۔ کہ ذرا سے یہ پردہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ خواہش مجھے دیدار بھی حاصل ہو جائے، لہذا سورہ اب اعراف آپ میں ہے نے جب کئی اللہ کے بار حکم کو پس پش یہ ڈالا شخص اور ہم اپنے نفس کلامی کی خواہش حاصل ہوا پوری کی، اللہ سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ہمت سے کام کیا، بڑی جرت کی ایک درخواست حکم آپ کی، کے رب نفس کا، ارینی انظر دیکھیے الیک۔ آپ کا نفس آپ یہ کو جو ایک حکم پردہ بیچ دیتا میں ہے، اس حائل کے کیا اندر سے ہوا ایک طلب پروردگار، تو ابھرتی ہے، میرا شوق ایک دیکھ، خواہش میرا ابھرتی ہے۔ اشتیاق دیکھ، تو مجھے آپ کو ذرا معلوم دیدار ہے بھی کہ عطا یہ ہو جائے۔ خواہش حرام، اس پر کیا بات کہی گئی؟ لن اب آپ ترانی، نے اللہ کے حکم کو پس موسیٰ پش ڈالا اور اپنے تم نفس مجھے کی خواہش ہرگز پوری نہیں دیکھ سکتے، تم اس جسد ظاہری کے اور ساتھ، کبھی اس جسد مادی کے ساتھ، ایک حکم آپ کے نفس انظری کا، آنکھوں سے دیکھیے میرا آپ کا دیدار نفس نہیں آپ کو ایک حکم دیتا ہے، اس کے اندر سے ایک ولیکن طلب انظر ابھرتی ہے، الجبل، ایک خواہش دیکھو ابھرتی ہم ہے۔ تمہیں ایک مثال دیے دیتے، ذرا اس آپ کو پہاڑ کی معلوم طرف ہے کہ دیکھو، یہ خواہش حرام، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے، اب آپ نے اللہ کے حکم کو پس پش ڈالا اور اپنے نفس کی خواہش اگر پوری وہ پہاڑ ہماری تجلی کو جھیل جائے، تحمل کر لے، کی، اور کر لی تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں ایک دیکھ حکم آپ سکے۔ کے نفس کا، دیکھیے اس کے بعد آپ کا ہوا نفس کیا؟ آپ کو ایک فلما حکم دیتا ہے، اس کے اندر سے ایک تجلی طلب ربہ ابھرتی ہے، للجبل ایک خواہش ابھرتی ہے۔ وخر موسیٰ صعقا، آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ اللہ خواہش تعالیٰ نے حرام، پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالی، اب آپ تو نے وہ اللہ پہاڑ کے جو ہے حکم کو پس پش ڈالا اور اپنے موسیٰ، نفس کی خواہش اب پوری دیکھیے کی، براہ راست تجلی موسیٰ پر نہیں ہے، یہ اور انڈائریکٹ کبھی مشاہدہ ہے، تجلی ایک ربانی حکم آپ کے کا، کہ نفس جو کا، پہاڑ پر دیکھیے ہوئی ہے، آپ کا نفس آپ اور کو ایک پہاڑ حکم کی جو دیتا ہے، اس کیفیت کے ہوئی اندر اس سے کے ایک طلب مشاہدے سے ابھرتی حضرت ہے، موسیٰ بے ہوش ہو ایک گئے۔ خواہش ابھرتی ہے۔ فسعق آپ کو معلوم ہے کہ یہ موسیٰ خواہش صعقا۔ حرام، یہ ہے وہ مثال جو یہاں دی ہے قرآن اب کی۔ آپ نے اللہ کے حکم کو لو پس انزلنا پش ڈالا هذا اور اپنے القرآن نفس کی على خواہش پوری جبل کی، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ نتیجہ کیا ایک نکلا؟ حکم آپ کے نفس کا، انسان دیکھیے کی آپ کا نفس استدلال، آپ کو ایک حکم استنتاج، دیتا ہے، اس کے اندر سے ایک طلب نتیجہ یہ ابھرتی نکلا ہے، کہ جو ایک خواہش تاثیر ابھرتی ہے۔ تجلی ذات ربانی کی آپ کو ہے، معلوم ہے کہ یہ وہی خواہش تاثیر حرام، کلام ربانی کی ہے، صرف یہ ہے کہ اب ہمیں آپ اس کا نے شعور اللہ نہیں، کے ہمیں حکم کو پس اس کا پش ادراک ڈالا اور اپنے نفس کی یہ خواہش بالکل پوری کی۔ ذات کی تجلی کی جو تاثیر تھی وہی قرآن خود بیان کر رہا ہے، اس کلام ربانی کی۔ ایک اس حکم کو آپ بھی کے نفس علامہ کا، اقبال نے دیکھیے خوب کہا آپ کا نفس آپ کو ایک حکم فاش دیتا ہے، اس کے گویم اندر سے ایک آج طلب ہر دل ابھرتی مجھ ہے، پرست۔ ایک خواہش ابھرتی ہے۔ صاف کہہ دیتا ہوں جو کچھ میرے آپ کو دل میں معلوم ہے، ہے کہ یہ خواہش حرام، این کتابیں نیست چیزیں دیگر است۔ اب آپ نے اللہ اسے کے کتاب حکم نہ کو سمجھ پس بیٹھنا پش ڈالا اور قرآن کو، اپنے یہ نفس کتاب کی نہیں خواہش ہے، پوری کچھ کی۔ اور ہے، کچھ اور کیا ہے؟ مثل حق پنہاں ہم پیدا، ایک حکم آپ کے نفس کا، زندہ دیکھیے آپ کا پائندہ نفس آپ کو ایک گویا، حکم دیتا ہے، اس کے اندر سے ایک طلب یہ تو جیسے ابھرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک ذات خواہش ہے، ابھرتی ہے۔ مثل حق، ذات آپ کو حق معلوم ہے کہ سبحانہ یہ و تعالیٰ خواہش کی طرح یہ حرام، زندہ ہے، پائندہ ہے۔ اب مثل آپ حق، نے اللہ کے حکم کو پس پائندہ پش و ڈالا گویا، اور اپنے نفس کی خواہش پوری یہ کی۔ جو ہے زندہ ہے، یہ متکلم ہے، کلام نہیں اور ہے، کبھی کل صفات ربانیہ ایک حکم آپ کے نفس ظاہر اور کا، باطن، دیکھیے آپ کا نفس آپ مثل کو ایک حق حکم پنہاں، دیتا ہے، اس کے ظاہر اندر سے ایک طلب پنہاں، ابھرتی ہے، اور ایک خواہش حی و ابھرتی قیوم ہے۔ جیسے اللہ کی ذات ہے، آپ کو وہی معلوم ہے صفات کہ یہ اس کلام خواہش کی۔ حرام، اور اس کے بعد وہ شعر آیا تھا جو میں پہلے سنا اب چکا آپ ہوں، نے اللہ کے چوں حکم بجاں کو پس پش درست ڈالا اور جاں اپنے دیگر نفس کی شب۔ خواہش پوری کی۔ جب یہ قرآن کسی انسان کے اندر سرایت کر اور جاتا ہے، کبھی اس کے دل پر نازل ہوتا ہے۔ ایک حکم آپ کے نفس کا، دیکھیے یہ دیکھیے الفاظ آپ کا کہیں اور نفس نہیں آپ کو ملیں ایک گے۔ حکم دیتا ہے، اس میرے کے اندر سے ایک نزدیک طلب ابھرتی جہاں ہے، علامہ اقبال ایک اس خواہش قول میں ابھرتی قرآن ہے۔ کی عظمت کا سب سے بڑا آپ کو ثبوت، معلوم ہے کہ یہ خواہش وہاں حرام، عظمت قرآنی کے سب سے زیادہ واقف اب آپ نے اور اللہ اس کا کے سب سے حکم زیادہ کو پس شعور پش رکھنے ڈالا والے اور علامہ اپنے نفس کی اقبال۔ خواہش پوری کی۔ یہ الفاظ آپ کو کہیں نہیں مل سکیں گے کہ مثل حق پنہاں ہم پیداشت، ایک حکم آپ کے نفس زندہ کا، و پائندہ دیکھیے و آپ کا گویا، نفس آپ کو ایک حکم دیتا چوں ہے، اس کے بجاں اندر سے ایک طلب درست ابھرتی جاں ہے، دیگر شود، ایک خواہش ابھرتی جہاں ہے۔ چو دیگر شد جہاں دیگر آپ شود۔ کو معلوم ہے کہ جب یہ یہ خواہش انسانوں کے اندر حرام، سرایت کر جاتا ہے، ان کے اندر ایک انقلاب اب آتا آپ ہے۔ نے اللہ کے اور حکم یہ کو پس اندر کا پش ڈالا اور انقلاب اپنے ہے، نفس کی ایک خواہش عالمی پوری کی۔ انقلاب کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ آپ آرڈیننس کے ذریعے سے نمازیں پڑھوائیں گے، ایک حکم آپ کے تو نفس پھر کا، نماز وہی دیکھیے پڑھی جائے آپ گی کا جو نفس آفس آپ ٹائم کو میں ایک آئے حکم گی۔ دیتا ہے، اس کے اندر سے ایک طلب اور کیوں ابھرتی پڑھیں ہے، گے؟ وہ تو ایک آرڈیننس خواہش کے ذریعے سے ابھرتی پڑھائی ہے۔ جا رہی ہے، اس کا حسن آپ تو کو وہ ہوگا معلوم جو ہے ہمارے کہ یہاں یہ دیکھا خواہش جاتا ہے۔ حرام، اور اس وقت بھی اس زمانے میں اب آپ نے میں نے یہ اللہ سنا کے ایک حکم جگہ کو پس پش ڈالا اور اپنے نفس کی خواہش پوری کی۔ وہ شروع میں جب آرڈیننس نافذ ہوا تھا ہمارے ہاں، اور کبھی تو دفتروں میں بڑا اہتمام ہوا، ایک حکم آپ کے خاص نفس طور کا، پر دیکھیے بڑے آپ کا اہتمام سے نفس زور آپ کی کو نماز ایک حکم پڑھنی شروع دیتا ہے، کی۔ اس کے اندر سے ایک طلب لیکن مجھے ابھرتی ہے، بتایا گیا
گیا کہ ایک کلاس خواہش 4 ہوتی ہے۔ امپلائیز جو ہیں ہمارے یہ ڈرائیور آپ کو معلوم ہے کہ یہ خواہش حرام یہ کھڑے ہنستے رہتے ہیں، شریک نہیں ہوتے.
اب آپ نے मैंने उनसे اللہ कहा के वो इसलिए हुक्म कि को इन्हें मालूम है कि डाला और आप भी अपने तो नफ्स यही की पढ़ रहे ख्वाहिश थे नमाज। बाकी आपके ड्राइवर से और आपके खानसामा से ये बात छुपी हुई नहीं है कि असर आपने भी एक नहीं हुक्म पढ़ा। आपके नफ्स का। देखिए ये सिर्फ आपका जोर है जो नफ्स आप आपको एक हुक्म देता है, उसके ये अंदर से असल तलब में उभरती अंदर का है, इनकलाब एक जब तक ख्वाहिश ना आए। उभरती है। बाहर का ठूसा हुआ आपको इनकलाब, मालूम है वो कि तो ये जब ख्वाहिश से हट जाएगा तब्दीली खत्म हो जाएगी। चूं अब आपने अल्लाह के हुक्म को से पुश डाला और अपने नफ्स की ख्वाहिश जब पूरी अंदर तब्दीली हो जाएगी, अब इंसान का पूरा वजूद बदलेगा और कर ली। फिर उसके अंदर से तब्दीली जो है एक वो हुक्म उभरेगी। आपके नफ्स का। उसे देखिए किसी आपका खारजी नफ्स आपको एक दबाव की हुक्म जरूरत देता है, नहीं उसके होगी। अंदर से एक तलब जहाँ उभरती दीगर है, शुद्ध जहाँ एक ख्वाहिश दीगर उभरती है। और जब इंसानी शख्सियतों के अंदर आपको ये मालूम है अंदर कि ये से आता ख्वाहिश है, हराम। तो फिर वो आलमी इनकलाब बनता है। जैसे कि अब मोहम्मद आपने रसूलुल्लाह का अल्लाह के इनकलाब। हुक्म को पसे पुश वाक़या डाला ये और है कि अपने अगर नफ्स की ह्यूज ख्वाहिश पूरी कॉन्स्पिरेसी अब्दुल्ला इब्ने सबा की साजिश और अगर कभी कामयाब न हो गई होती, एक हुक्म आपके नफ्स मुसलमानों के का। अंदर देखिए आपका नफ्स आपका आपको एक हुक्म इख्तिलाफ देता है, उसके अंदर से एक तलब उभरती है, जो हजरत एक उस्मान की ख्वाहिश शहादत, उभरती फिर है। हजरत अली की शहादत रज़ी अल्लाह आपको तआला मालूम है अन्हुमा, कि ये ख्वाहिश और हजरत हराम। अली की दौरान खिलाफत या आपस के अब आपने जंगे हुई, अल्लाह जंगे के जमल, हुक्म जंगे को सिफ़ीन, पुश जंगे डाला और नहरान, अपने नफ्स की ख्वाहिश अगर ये ना हुई होती तो जिस स्पीड के साथ और रफ्तार के साथ इनकलाब एक मोहम्मद हुक्म की आपके तौसीह नफ्स हो का। रही थी। देखिए अला साहिब आपका नफ्स सलाम आपको एक हुक्म देता है, कोई उसके अंदर से ताकत एक दुनिया तलब में नहीं उभरती थी। है, इकबाल एक ने इसका ख्वाहिश भी नक्शा उभरती है। खींचा है कि थमता न था आपको किसी से मालूम है कि सैले ये रवा ख्वाहिश हमारा। हराम। वो सैले रवा था, कोई रोकने वाला नहीं था। अब आपने इंटरनल अल्लाह के हुक्म सैबोटाज को पसे वो पुश है डाला और अपने नफ्स की ख्वाहिश इनकलाब पूरी का रास्ता रोका। तो वाकया ये है कि वो अंदरूनी इनकलाब हुजूर ने बर्पा किया कुरान के एक जरिए हुक्म आपके सहाबा। नफ्स का। देखिए अंदर आपका से जो नफ्स आपको एक इनकलाब हुक्म देता है, था, उसके उसने अंदर से अलग एक में तलब इनकलाब की उभरती शक्ल है, इख्तियार की। एक ख्वाहिश और ये उभरती है। इनकलाब जो है इतनी अपने अंदर आपको कुव्वत मालूम है रखता कि था, ये ख्वाहिश इतनी हराम। पोटेंशियलिटी थी उसकी कि वो 20 बरस अब के अंदर आपने अंदर अल्लाह के हुक्म को पसे पुश डाला और अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी की। तसव्वुर तो तारीख में उससे पहले इतनी बड़ी कोई ममलकत कायम हुई नहीं। एक हुक्म आपके कहा नफ्स यमन और का। कहा देखिए इस्लाम को आपका चलो। नफ्स आपको एक एशिया हुक्म माइनर, देता है, टर्की। उसके अंदर से एक तलब यहाँ उभरती से वहाँ और है, वहाँ एक से ख्वाहिश वहाँ। उभरती है। इतनी अजीम ममलकत आपको हज़रत मालूम है उस्मान कि ये रज़ी ख्वाहिश अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफत में हो चुकी थी। ये बात अगर अब ये चलता आपने मामला अल्लाह आगे के तो हुक्म को कोई पसे पुश हुकूमत डाला और नहीं थी। अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी खत्म हो चुकी। सल्तनत किसरा खत्म हो चुकी थी, बसते उड़ और कर गई। ली। अब कौन सी ताकत रह गई थी एक जो हुक्म सलाह आपके का नफ्स रास्ता का। थी? देखिए ये वो आपका यहूदी नफ्स आपको साजिश एक है हुक्म जिसने देता अंदर है, से उसके अंदर से एक तलब उभरती है, एक ख्वाहिश ये है उभरती है। इनकलाब मोहम्मदी का तरीका। आपको अंदर से मालूम है कि तब्दीली। ये ख्वाहिश इसी को हराम। अल्लामा इकबाल ने कहा है, तेरे ज़मीर पे जब तक अब आपने अल्लाह के हुक्म को पसे पुश डाला और अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी की। ये कुरान अब भी तुम ऐसे महसूस करो कि जैसे तुम्हारे दिल पर एक हुक्म आपके नफ्स का। देखिए अब मुझे आपका याद नफ्स आया, आपको एक हुक्म इमाम देता है, उसके इब्न अंदर से एक क़य्यिम तलब रहमतुल्लाह उभरती है, एक ख्वाहिश उसका एक बड़ा उभरती प्यारा है। जुमला है। वो आपको कहते हैं मालूम है कुरान कि के ये बाद ख्वाहिश पढ़ने हराम। वाले ऐसे हैं कि जब वो अब कुरान को आपने पढ़ते अल्लाह हैं के हुक्म को पसे पुश तो यूं डाला और महसूस अपने करते नफ्स की हैं कि ख्वाहिश कुरान पूरी मुसहफ में लिखा हुआ नहीं है, उनके अपने दिल के और ऊपर कभी। डंडा है, दिल के एक ऊपर से हुक्म पढ़ आपके रहे हैं। नफ्स का। यानी इतनी देखिए कामिल आपका मुताबिकत नफ्स को आपको एक महसूस हुक्म करते हैं, अपनी देता है, फितरत, उसके अंदर से human एक तलब nature। उभरती है, और एक कुरान के ख्वाहिश अंदर उभरती इतनी है। मुताबिकत है, इस तरह आपको वो मालूम टैली है करते कि हैं ये एक दूसरे ख्वाहिश के साथ हराम। कि महसूस होता है कि वो किताब इन अब सफ़हात आपने में लिखी अल्लाह हुई के नहीं है, हुक्म बल्कि को लौहे पसे पुश कलम डाला पर और लिखी अपने हुई है नफ्स कि की जहाँ से ख्वाहिश वो इंसान उसे पढ़ रहा है। तो पहली बात तो कुरान मजीद की सारी के हवाले से इस पहलू से हमारे सामने एक आई हुक्म आपके नफ्स का। जो देखिए तासीर आपका है नफ्स आपको एक ज़ात हुक्म देता रब्बानी है, की उसके अंदर से तजल्ली एक तलब की, उभरती है, वही एक ख्वाहिश तासीर है उभरती इस है। कुरान मजीद की। आपको बशर्ते मालूम कि है कि हमारे ये दिल जो ख्वाहिश है हराम। वो कुछ अपने अंदर उस इस्तेदाद और अब सलाहियत को आपने पैदा अल्लाह के हुक्म को पसे पुश दूसरा डाला मकाम और है अपने सूरह नफ्स की यूनुस। ख्वाहिश पूरी की। अब किसी कलाम की अजमत का दूसरा पहलू हो सकता है उसकी इफादियत के एतबार से। एक हुक्म आपके उससे नफ्स फायदा का। क्या होगा? देखिए और आपका इंसानी नफ्स के लिए। आपको एक हुक्म देता है, देखिए उसके दो अंदर से एक आयात तलब के उभरती अजीम है, खजाने हैं अज़मत एक ख्वाहिश कुरान उभरती के। है। सूरह यूनुस में आपको या मालूम है कि ये अय्युहन्नास, ख्वाहिश ऐ हराम। लोगों, क़द जाअतकुम अब आपने मौइज़तुम अल्लाह मिन के हुक्म को रब्बिकुम पसे पुश व डाला और शिफ़ाउन अपने लिमा नफ्स की फ़ी ख्वाहिश पूरी की। सुदूर व हुदम व रहमतुल लिल मोमिनीन। चार अल्फाज नोट और कर करिए। ली। ऐ लोगों, आ गई है एक तुम्हारे हुक्म पास आपके वो नफ्स चीज, का। देखिए तुम्हारे आपका रब की नफ्स तरफ आपको से एक जो हुक्म देता मौइज़ा, है, उसके अंदर से एक तलब उभरती है, मौइज़ा किसे कहते एक हैं? ख्वाहिश नसीहत। उभरती है। इस बात को जरा समझ लीजिए, आपको मालूम है तरतीब कि ये क्या ख्वाहिश हराम। है? नसीहत उसे कहते हैं। अब आपने अल्लाह के हुक्म को पसे पुश डाला जी, और रहा अपने नफ्स नहीं की जा रहा, ख्वाहिश मैंने पूरी उसकी तरतीब बदली हुई है। मुझे याद दिलाया एक साहब ने, तो सूरह रहमान की इब्तिदाई आयत का बयान तो रह की। गया। एक हुक्म आपके नफ्स वो का। रहा नहीं, मैंने देखिए कहा किसी आपका और नफ्स तरतीब आपको से एक था, हुक्म बयान किसी देता और है, उसके तरतीब अंदर से से कर एक रहा तलब उभरती है, पढ़ने में एक ख्वाहिश 4 2 और उभरती है। 1। और अब जो मैं आपको बयान कर मालूम रहा है हूँ, कि ये पहले एक ख्वाहिश आयत सूरह हराम। हश्र की जो बयान की, अब 2 आयत है
سورہ یونس میں. اب آپ نے اللہ کے لوگوں حکم کو تمہارے پس پاس پش آ ڈالا گئی اور ہے اپنے تمہارے نفس کی رب کی خواہش طرف سے پوری کی. موعظت، اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہے
उनके एक लिए हुक्म आपके नफ्स का। तवज्जो देखिए आपका नफ्स आपको एक हमने हुक्म कुरान देता है, उसके अंदर से एक तलब उभरती है, मुक़द्दस एक किताब, ख्वाहिश उभरती है। एक हुसूल सवाब या आपको इसाले मालूम है सवाब कि ये का ख्वाहिश आला। हराम है। कुरान है क्या? नंबर 1 मौइज़ा। अब मौइज़ा किसे आपने कहते हैं? अल्लाह के हुक्म को पसे मौइज़ा पुश उसे डाला और कहते हैं अपने नफ्स की वो बात ख्वाहिश पूरी जिससे दिल नरम हो जाए, दिल के अंदर गुदास पैदा करने वाली शय। एक हुक्म आपके नफ्स का। देखिए आला से आपका आला नफ्स हकीमाना आपको बात एक किसी हुक्म से देता कही है, जाए, उसके अंदर दिल से एक सबसे तलब असर नहीं उभरती है, एक ख्वाहिश एक उभरती क्रस्ट है। आ जाता है इंसान के दिल के ऊपर। आपको मालूम है कि ये जैसे कि ख्वाहिश यहूद के हराम है। उलमा के बारे में फरमाया गया, सुम्मा अब क़सत आपने क़ुलूबुकुम अल्लाह के फ़हिय हुक्म कल को पसे हिजारति पुश व डाला और अशद्दु अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह एक हुक्म आपके व इन्न नफ्स मिनहा का। लमा देखिए यशक़्क़ु आपका फयख़रुजु नफ्स मिनहुल आपको एक माअ। हुक्म देता है, उसके अंदर से एक और तलब लोगों फिर उभरती तुम्हारे है, दिल सख्त एक होते चले ख्वाहिश गए, उभरती है। फिर वो पत्थरों के मानिंद सख्त आपको हो गए, मालूम है बल्कि कि ये उनसे भी ख्वाहिश ज्यादा हराम सख्त, इसलिए कि पत्थरों में तो वो भी होते अब हैं आपने अल्लाह के कि जो हुक्म अल्लाह को के पसे खौफ से पुश गिर डाला और अपने नफ्स की ख्वाहिश पत्थरों पूरी में वो भी होते हैं कि जो अल्लाह की खशियत से फट जाते हैं, उनमें से पानी बह निकलता है। एक हुक्म आपके इस नफ्स तरह का। के हैं, देखिए लेकिन आपका इंसान का नफ्स दिल आपको जब एक सख्त हुक्म हो जाए, देता है, उसके अंदर से जब एक पत्थर तलब बन जाए उभरती है, तो कोई शय एक दुनिया ख्वाहिश की उसकी उभरती सख्ती है। का मुकाबला नहीं कर सकती। आपको मालूम है पहले कि ये इस सख्ती ख्वाहिश को नरम हराम है। करेंगे, जैसे जमीन है चटियल अब जमीन, आपने अल्लाह के उस हुक्म जमीन को के पसे अंदर पुश हल डाला चलेगा और तो अपने बारिश नफ्स भी की ख्वाहिश फायदा पूरी देगी। उसको आप जमीन को नरम करते हैं ताकि वो बारिश को जल्द कर ली, वरना चटियल जमीन है, एक हुक्म वो आपके पानी नफ्स बह का। रहा है, देखिए बह रहा है, आपका नफ्स और वो आपको जमीन एक के हुक्म अंदर देता नहीं है, होगा। उसके अंदर से एक तलब तो पहला उभरती लफ्ज इस्तेमाल है, किया एक ख्वाहिश मौइज़ा। ये उभरती है। कुरान वास है, नसीहत आपको है, मालूम है कि ये दिलों ख्वाहिश को नरम हराम करता है। है, दिलों पर जो क्रस्ट आ गया है सब अब उसे आपने तोड़ता अल्लाह है, के हुक्म को उसमें पसे हल पुश चलाता है। डाला और अपने नफ्स की फिर क्या ख्वाहिश करता पूरी है? फिर जब ये जज्ब होता है, शिफाउन लिमा फी सुदूर, जो सीने के रोग हैं एक उनके हुक्म लिए आपके शिफा। नफ्स का। देखिए आपका अब आप नफ्स गौर आपको एक कीजिएगा, हुक्म देता अल्लाह है, उसके इकबाल अंदर ने से इन्हीं एक तलब दो उभरती एतबारात से है, एक ख्वाहिश उभरती है। मुसलमानों का मर्सिया कहा आपको मालूम है कि ये कि ख्वाहिश मुसलमानों हराम ने है। इस कुरान को न मौइज़ा के लिए अब इस्तेमाल आपने किया अल्लाह और के न हुक्म तज़किया को नफ्स पसे के लिए पुश इस्तेमाल डाला और अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी बल्कि इसको तो सिर्फ बना लिया है वो जान आसानी से निकालने का नुस्खा या इसाले सवाब का। एक हुक्म आपके नफ्स का। चुनांचे देखिए कहते आपका हैं, नफ्स बास आपको एक के लिए हुक्म देता है, उसके अंदर से एक तलब वाइज़ उभरती अफ़साना बंद। है, एक ख्वाहिश उभरती है। वाइज़ तो है आपको हमारे, मालूम है कि ये ख्वाहिश दास्ताने कहते हैं, अफसाने कहते हैं, किस्से अब कहते आपने हैं, अल्लाह के लतीफे कहते हुक्म को हैं। पसे पुश डाला और अपने नफ्स की ख्वाहिश मानिए पूरी तो हर से बुलंद, उसके बयान में मानी तो होते हैं बहुत ही घटिया नीचे के। एक हुक्म आपके नफ्स का। अल्फाज देखिए का आपका शिको नफ्स होता है, आपको एक अल्फाज हुक्म बहुत देता है, ऊंचे उसके अंदर से एक तलब उभरती है, बस खतीब एक ख्वाहिश में उभरती गुफ्तारे है। हूँ, बाज़ईफ और आपको शाद मालूम है मुरसल कि ये तारीख। ख्वाहिश हराम है। सारा बाज़ और नसीहत जो हो रहा है वो ज़ईफ अब हदीसों आपने के जरिए से। अल्लाह के हुक्म को पसे ज़ईफ पुश रिवायात, डाला और अपने नफ्स की ख्वाहिश रिवायात पूरी बुखारी की हो, मुस्लिम की हो, तिरमिज़ी की हो, इब्ने माजा की हो, और कर ली। कहा खतीब बगदादी और देलवी एक हुक्म आपके नफ्स का। वो किताबें देखिए जिनकी आपका कोई सनद नफ्स नहीं आपको है, एक हुक्म देता है, वहाँ उसके की अंदर से एक तलब रिवायात के उभरती जरिए है, से लोगों को एक तस्कीर ख्वाहिश करने की उभरती कोशिश है। कर रहे हैं। बाज़ईफ आपको और मालूम है शाज़ कि ये मुरसल ख्वाहिश तारीख, हराम है। ज़ईफ रिवायात, शाज़ रिवायात, मुरसल अब रिवायात, आपने अल्लाह जिनका के सिलसिला हुक्म को रिवायत पसे पुश मोहम्मद डाला और रसूलुल्लाह अपने तक नफ्स की मुत्तसिल ख्वाहिश नहीं पूरी है। इसके जरिए से कर रहे हैं, हालांकि मौइज़ा सबसे बड़ा मौइज़ा ये कुरान था। एक हुक्म आपके नफ्स कुरान का। कहता है, देखिए "फ़ज़क्किर आपका नफ्स आपको एक बिल-कुरान हुक्म देता है, उसके अंदर से एक तलब और उभरती मोहम्मद सल्लल्लाहु है, अलैहि एक वसल्लम ख्वाहिश आप कुरान उभरती के है। जरिए नसीहत कीजिए। आपको ये मालूम है कुरान कि है ये जो दिलों की ख्वाहिश सख्ती को हराम है। खत्म करेगा, गुदास पैदा करेगा। अब आपने दूसरी तरफ अल्लाह अल्लामा के इकबाल क्या हुक्म को कहते पसे हैं पुश डाला और अपने नफ्स की ख्वाहिश कि पूरी जहां तक हमारे यहाँ जो भी तसव्वुफ के मारूफ करते हैं, सूफियाए हक की बात एक नहीं हुक्म कर आपके रहा। नफ्स का। देखिए वहाँ आपका कव्वाली हो नफ्स रही आपको एक होगी तो हुक्म हाल आ देता है, जाएगा। उसके अंदर से एक तलब उभरती है, सूफिए एक ख्वाहिश पश्मीना उभरती है। पोशे हाल मस्त, आपको मालूम है कि अब ये ख्वाहिश शराबे हराम है। नगमे कव्वाल मस्त। अब आपने अल्लाह के हुक्म को पसे पुश डाला और अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी कैफ कैफ और सुरूर हासिल हो गया है। सूफिए पश्मीना पोशे हाल मस्त और शराबे नगमे एक हुक्म आपके कव्वाल। नफ्स का। देखिए आपका लेकिन नफ्स ये आपको एक हुक्म कि देता है, उसकी उसके अंदर से महफिल एक में तलब दरनमी उभरती है, साजत एक बकुरान ख्वाहिश उभरती महफिलश, है। उसकी आपको महफिल में मालूम है कि कुरान ये का ख्वाहिश कहीं गुजर हराम नहीं। जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह अब सल्लल्लाहु अलैहि आपने वसल्लम की अल्लाह एक के महफिल हुक्म होती को थी, पसे पुश डाला और महफिल अपने समा। नफ्स की ख्वाहिश पूरी की। वो महफिल समा क्या थी? हुजूर सहाबा से फरमाइश कर करके कुरान सुनते थे। एक हुक्म आपके हज़रत नफ्स अब्दुल्लाह का। इब्न मसूद देखिए रज़ी आपका अल्लाह नफ्स ताला की आपको एक रिवायत हुक्म मौजूद देता है, उसके अंदर से एक कि तलब मुझे एक उभरती मरतबा है, हुक्म दिया हुजूर एक ने ख्वाहिश कुरान उभरती सुनाओ। है। मैंने अर्ज़ किया, आपको हुजूर आपको मालूम है कि सुनाऊं? ये ख्वाहिश आप पर तो नाजिल हुआ है। तो हुजूर ने अब फरमाया आपने नहीं, अल्लाह मुझे के किसी हुक्म और को से पसे सुनकर पुश कुछ डाला और और अपने हासिल नफ्स की ख्वाहिश पूरी की। अब इम्तिसाल अम्र में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह एक निसा हुक्म पढ़ी। आपके नफ्स का। देखिए आपका नफ्स आपको एक 41वीं हुक्म आयत देता पर है, उसके पहुंचे अंदर से चश्मे एक तलब तसव्वुर से उभरती
دیکھیے ایک کہ خواہش حضور ابھرتی بھی ہے. تشریف فرما ہے، صحابہ آپ کو کرام معلوم ہے نفل کہ ہیں، یہ خواہش اور صحابہ کیسے بیٹھا کرتے تھے ادب کے ساتھ.
اب آپ نے اللہ کے حکم کو پس پش ڈالا اور اپنے نفس کی خواہش پوری کی. غور کر لیجیے، ایک حکم آپ کے نفس کا